Today we are going to talk about एक ऐसा platform that is quietly transforming how South Asian fashion is reaching the global audiences. पाकिस्तान से कपड़े जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं in UK और US या इंटरनेशनली उनको भिजवाया जा सकता है. But now from Lahore to London and from the local retailers to the international wardrobes, a new digital bridge is being built. What is LAM? LAM Technologies is basically Lahore-based e-commerce marketplace that is actually focused on South Asian fashion. It brings together Pakistani designers, Pakistani brands and artisans on one single platform. From the bridal wear to the casual outfits, from the luxury pret to the accessories, everything is available on one single place or a platform. LAM is heavily tech-driven. LAM ka focus is basically on technology. It uses AI and machine learning for the product recommendations and search. In simple terms, LAM is not just fashion. It is the fashion powered by technology. Hey guys, this is Manahil Fatma and welcome to another episode of Naya Venture, जहाँ मैं आपको ऐसे वेंचर्स की जर्नी के बारे में बताती हूँ जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट करके आज एक नाम बना लिया है और बिजनेस की कम्युनिटी में उनकी एक पहचान है एंड ऑल्सो लोकल मार्केट में भी उनको जाना जाता है. Today we are going to talk about एक ऐसा platform that is quietly transforming how South Asian fashion is reaching the global audiences. आज से कुछ अर्सा पहले अगर बात की जाए तो ये नामुमकिन लगता था सोच कर भी कि ईद के मौके पर या किसी भी फेस्टिवल के मौके पर पाकिस्तान से कपड़े जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं इन UK और US या इंटरनेशनली उनको भिजवाया जा सकता है. इस तरह किया जाता था कि फैमिलीज की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से खरीदे जाते थे कपड़े और किसी के थ्रू भिजवा दिए जाते थे. बट नाउ फ्रॉम लाहौर टू लंदन एंड फ्रॉम द लोकल रिटेलर्स टू द इंटरनेशनल वार्डरोब्स अ न्यू डिजिटल ब्रिज इज बीइंग बिल्ट. और अगर हम बात करें इससे पहले की तो ये आइडिया किसी को नहीं आया था. एंड टुडे दैट नेम इज LAM. व्हाट इज LAM? LAM Technologies is basically Lahore-based e-commerce marketplace that is actually focused on South Asian fashion. ये सिर्फ शॉपिंग वेबसाइट नहीं है बल्कि फैशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े डिफरेंट जगहों पे डिलीवर किए जा सकते हैं. It brings together Pakistani designers, Pakistani brands and artisans on one single platform. और ये पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स और ब्रांड्स हैं जो कि एक डिजिटल स्पेस को शेयर करते हैं और वहाँ से कपड़े जो हैं डिलीवर किए जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं. फ्रॉम द ब्राइडल वेयर टू द कैजुअल आउटफिट्स, from the luxury pret to the accessories, everything is available on one single place or a platform. Its biggest focus is the South Asian diaspora living abroad. इसका actual focus are the overseas South Asians हैं जो अपने culture based fashion को access करना चाहते हैं. LAM की फाउंडिंग बेसिकली 2021 के आसपास हुई थी पर इसका आइडिया पहले से डेवलप था. द आइडिया केम फ्रॉम अ वेरी रियल प्रॉब्लम जो कि मैंने पहले भी शेयर की. LAM के को फाउंडर आरिफ इकबाल जो पहले मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और eBay जैसी कंपनीज के साथ काम कर चुके हुए थे, कोविड के बाद पाकिस्तान वापस आकर एक मसला नोटिस करते हैं एंड दैट वाज दैट पीपल लिविंग अब्रॉड स्ट्रगल टू फाइंड द ऑथेंटिक पाकिस्तानी फैशन. बाहर के मुल्क में रहने वाले लोग ऑथेंटिक पाकिस्तानी फैशन की एक्सेस को ईजी नहीं समझ रहे थे और ना ही वो ईजी था, especially for the weddings या ईद या cultural events. That gap actually became the foundation of LAM. और इसी गैप ने LAM की फाउंडेशन रख दी. The co-founding team actually includes the CEO आरिफ इकबाल जो कि टेक बैकग्राउंड से थे, अहमद मुनीब that is linked to product and engineering, आमिर इकबाल that's linked to supply chain, सहर आरिफ जो कि फैशन क्रिएटिव साइड पे थे. ये टीम टेक और फैशन की स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन थी. Now if we talk about the business model, LAM is not a single brand store. LAM एक सिंगल ब्रांड के साथ काम नहीं करता but it actually work with different brands and actually a marketplace जिसको different platforms या different brands शेयर करते हैं. It hosts around 1200 to 1500 designers and sellers. और products की रेंज जैसे मैं पहले mention कर चुकी हूँ from the casual wear to the bridal couture, हर चीज़ कवर्ड है. What makes LAM different? It's the support system for the sellers. वो इस चीज़ को यूनिक बनाता है. It provides the logistics, warehousing, photography, custom handling and even AI tools. So even the small designers can easily sell their products globally. So basically ये दोनों के लिए beneficial है for the sellers and the buyers. जो buyers बाहर रहते हैं और उनको वो उस तरह से products नहीं मिल पाते पाकिस्तानी on the occasions, और जो कि sellers हैं जो कि अपना product बेचना चाह रहे हैं पर पाकिस्तानी मार्केट में उनको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. इस वजह से छोटे डिज़ाइनर्स भी ग्लोबल लेवल पर सेल कर सकते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ सेलर टूल कॉल्ड Octane which actually helps the brand build their own online stores.
ऑक्टेन नाम का टूल ब्रांड जो कि अपनी वेबसाइट बनाने में भी हेल्प कर रहा है लाम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। यू नो दैट्स सो यूनिक। लाम इज हेविली टेक ड्रिवन। लाम का फोकस इज बेसिकली ऑन टेक्नोलॉजी। It uses AI and machine learning for the product recommendations and search. For example, if someone searches for the wedding outfit, it suggests the complete looks. अगर कोई wedding outfit के बारे में search कर रहा है तो ये complete outfit की looks और suggestions देता है. It also improves, inventory planning for the sellers. In simple terms, LAM is not just fashion. इट इज़ द फैशन पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। और वो जो गैप था बेसिकली कि ईद वगैरह पे या फेस्टिवल्स वगैरह पे बाहर जो लोग थे पाकिस्तानी, जिनको पाकिस्तानी फैशन तक एक्सेस चाहिए था, उनके लिए अवेलेबिलिटी शो करना वॉज समथिंग दैट लाम मेड डिफ्रेंशिएट उसने किया। सिंगल वर्ड्स में ये लाम सिर्फ फैशन नहीं था बल्कि टेक्नोलॉजी से पावर्ड फैशन था। लाम हैज़ ऑल्सो ग्रोन रैपिडली इन अ शॉर्ट टाइम में ही लाम ने अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली एंड ओवर 500,000 से भी ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर्स हैं और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंस भी है। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि ओवरसीज़ कस्टमर्स ज़्यादा प्रीमियम परचेजेस करते हैं, especially for the weddings and special occasions. So in 2024, LAM raised around $5.5 million in seed funding. The funds are being used for basically the AI expansion, logistic improvements, global shipping, and even the UAE expansion. अगर हम impact on local industry बात करें तो LAM is actually helping the small designers to go global. In Pakistan, many designers struggle with the logistics and online research. तो लाम एक्चुअली ये मसला सॉल्व कर रहा है और एक सिस्टम एंड टू एंड प्रोवाइड कर रहा है इस मसले को सॉल्व करने के लिए। ये इनडायरेक्टली हज़ारों फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहा है फैशन इकोसिस्टम के थ्रू, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स द क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी कंसिस्टेंसी। व्हाट आर द चैलेंजेस? लाइक एवरी मार्केट प्लेस, लाम ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस। हर मार्केट प्लेस की तरह some customers report delivery delays and quality variations. हर बंदे और हर कस्टमर का एक different experience होता है with the brand. तो yes, there were complaints in past time. Returns or international shipping can also be complex, but it's possible. But this is very common in, e-commerce globally. So LAM is basically helping people out जो कि South Asian fashion तक access रखना चाहते हैं। और ये छोटे मोटे मसले global fashion e-commerce में बहुत ज़्यादा common है। अगर लाम की बात की जाए तो लाम competes with the platforms like the local fashion stores and large marketplaces. But its niche is very clear. That is South Asian fashion for the global buyers. This is the biggest strength. ये इसकी सबसे बड़ी strength है for now. LAM is also reportedly planning to expand into the UAE and other regions. इसके अलावा ये AI tools और customer experience को और improve करना चाहते हैं. The long-term vision is to make South Asian fashion globally mainstream, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। Not just the ethnic wear but the global fashion identity. So LAM is more than just an e-commerce platform. I am actually impressed by the idea कि किस तरह से South Asian fashion तक access लाने के लिए एक e-commerce platform provide किया गया जो कि बहुत ज़्यादा customer friendly भी रहा और sellers के लिए जो कमाना चाहते हैं उस platform के through उनके लिए भी बहुत helpful है। तो LAM सिर्फ एक e-commerce का platform नहीं है बल्कि it's a bridge between the tradition and technology. ये एक ब्रिज है ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के दरमियान। फ्रॉम द लोकल डिजाइनर्स इन पाकिस्तान टू द ग्लोबल वार्डरोब्स अब्रॉड, इट इज़ एक्चुअली कनेक्टिंग द वर्ल्ड एंड परहैप्स दैट इज़ इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। ये स्टोरी थी एक ऐसे गैप को फिल करके एक ऐसा बिजनेस खड़ा करने की जो आके सिर्फ सेलर्स के लिए अच्छा रहा बल्कि कस्टमर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नया वेंचर, जहाँ मैं आपको एक और बिजनेस की स्टोरी सुनाऊंगी जिसने डिफरेंट उसकी जर्नी बहुत डिफरेंट रही होगी और उसने डिफरेंट किस्म की मुश्किलात का सामना किया होगा और आज एक ब्रांड का नाम जो है वो बना होगा। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नया वेंचर, जहाँ मैं आपको एक और वेंचर की स्टोरी इसी तरीके से सुनाऊंगी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।